आप देख रहे हैं STV लद्दाख, आवाज घर घर की। Electron microscope. They saw flow cytometry. They did DNA isolation experiments and lots of microscopy. So I'm trying to tell you is that the things which you have never seen, never visualized, those things are there available with you. Some of you who are opportunate to become national winner, zonal winner, you will be participating in the student internship. Those Himalayans who are 80, the topper, they get Bhaskara fellowship for 1 whole year. And then apart from this physical interaction for 1 to 3 weeks, we will have some online interactions. Okay, some renowned scientists will do you career guidance, they motivate you, they inspire you. So that is what I am trying to tell you, that this is not another competitive exam. This is much more than that. And there is a reason for that. And that the reason is that when we say that India needs to progress, India needs to be Atmanirbhar, self-reliant. The path of going to become self-reliant goes by science. Isn't it? Do you agree with me or not? So whatever problems we have now, participate in that particular camp. And the very same day when we have valedictory program for national camp, we will start camping for the next year's VBM. I'm sure that all of you who are here, except those unfortunate kids who have entered now in 12th, we don't have VBM for 12th. I'm very sorry for that. If you force us, we will start VBM for 12th also. But we know that you have a lot of pressure in JEE. I myself a professor in IIT. I know how much tremendous pressure you have for all these competitive exams. So I don't know, beyond that, all of you should become brand ambassador to publicize about VBM. Why VBM should be restricted only to big cities? No. Students from each and every corner of India, students from small villages, small schools, they should also get opportunity to participate in the VBM and show that yes, they have passion and zeal about science. They have wonderful ideas. They can have creative mind, and all that is possible only if you make sure that your classroom, your school, your city, your neighbors, they are aware about VBM. And in May, on 21st May, when we start our next year's registration, all of you will register, and we will also make sure that you will ask, request and inform and motivate your friends to also register for one aspect of your presence here. Apart from that, another different aspect is we want to give you how there are different dimensions of science. I am a biologist, I do work on molecular immunology, I try and study. I am an experimental biologist. The reason I am emphasizing on experimental, there is a reason. Science can work only with theory up to a certain extent. You have to have experimental skills. And therefore, your laboratory component is extremely important. Now, some of you may have wonderful infrastructure available in your school, some of you may not. This place is going to tell you that whatever you studied in your theory classes, what kind of experiments, simple experiments, with limited infrastructure, limited materials, limited instruments, we can have something really, really amazing which can help us to understand science even better. So what I am trying to tell you is, we are here to also participate in exam, but apart from that, we are here to also learn. So all these bright minds is another objective. Obviously, evaluation will happen, somebody will win, but why somebody will win? All of you are winners, isn't it? Because all of you were excelled in your school level exam, that's why all of you deserve an applaud, because you are winners of first level exam. Now when I am telling that this is a scientific experimental skill testing examination, you may get nervous that, oh, I have never seen this setup before. This was not available in my school, this was not available. अपना काम करना है, ठीक है।
11th चल 11th क्या कर दो 11th क्लास saya sudah natin रबर ले लिया ताकि aluminium foil के साथ ऐसे कवर करके रबर में टाइट बन जाए ऐसे क्लास 10 तो प्यारे विद्यार्थियों, आज एक बहुत ही अच्छा अवसर है जब विभाग की ओर से एक पहला कार्यक्रम लद्दाख में इस तरह का आयोजित किया गया है और 3000 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया लद्दाख से। ये बहुत ही एक खुशी का विषय है। आप सब इसके लिए बधाई के पात्र हैं। विभाग एक गैर राजनीतिक और गैर शासकीय ऑर्गेनाइजेशन है जो देश में विद्यार्थियों में, युवाओं में, तो ये कोई नई बात नहीं है। अगर हम अपनी सोच को साइंटिफिक कर लें, अपने कहने के तरीके को साइंटिफिक कर लें, तो हमारा जो रहन सहन है, हमारा जो बातचीत करने का तरीका है, वो साइंटिफिक हो जाता है और इसी को हम कहते हैं साइंटिफिक टेम्पर। उसी तरह से पानी जो अवेलेबिलिटी है, एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था कि 2030 तक यहाँ पे पानी की शॉर्टेज होने वाली है। तो इस तरह की जो लोकल समस्याएं हैं उनकी तरफ अगर हम जागरूक कर दें तो मैं समझता हूं कि बहुत सारी चीजें हम अपने आप सॉल्व कर सकते हैं। आप छोटे बच्चे हैं तो एक एग्जाम्पल से या एक घटना आपके साथ E=mc² इक्वेशन का डिस्कवरी किया तो जगह जगह से उनको इनवाइट किया जाने लगा कि लेक्चर देने के लिए और बताने के लिए कि उनका कंसेप्ट क्या है। तो आइंस्टीन जाते थे जगह जगह पर और वो एक ही लेक्चर जो उन्होंने डिस्कवरी की थी उसको बताया करते थे। तो जो उनका ड्राइवर था वो सुना करता था पीछे बैठकर। तो एक दिन ड्राइवर कहता है कि सर आप जहां भी जाते हो एक ही लेक्चर देते हो, ये लेक्चर तो मैं भी दे सकता हूं। तो अगली बार जब वो लेक्चर के लिए कहीं गए तो आइंस्टीन ने कहा कि आज लेक्चर तुम दो, और उन्होंने अपनी ड्रेस, अपना कोट और अपना हैट ड्राइवर को दे दिया और पीछे बैठा दिया और खुद ड्राइवर किस जगह पे बैठ के वो उसको वेन्यू तक लेके गए। उनके ड्राइवर ने बहुत अच्छा लेक्चर दिया, आइंस्टीन से बेटर लेक्चर दिया। अब बात आई क्वेश्चन आवर सेशन की। तो जब क्वेश्चन आंसर सेशन था उसमें कोई प्रश्न पूछा गया उनसे, अब वो कहां से आंसर देते फंस गए। लेकिन ही वॉज हैविंग दैट साइंटिफिक टेम्पर, एक हाजिर जवाबी थी उसमें। तो उसने कहा दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, इवन माई ड्राइवर सिटिंग एट द है, उसी को हम साइंटिफिक टेम्पर कहते हैं। आइंस्टीन ने एक और लेक्चर में कहा था कि अगर एक साइंटिस्ट अपना जो उसका ज्ञान है, तो जो हम कहते हैं, बात करते हैं, अगर हम अपनी बात दूसरे को समझाने में कामयाब होते हैं
तो वो एक साइंटिफिक कम्युनिकेशन है, एक लॉजिकल कम्युनिकेशन है, एक मीनिंगफुल कम्युनिकेशन है। और विभा जो है वो इसी तरह का टेम्परामेंट डेवलप करने का एक प्रयास कर रही है भारतीय छात्रों में। हमारी जो ट्रेडिशनल नॉलेज थी वो दुर्भाग्यवश कहीं ना कहीं पीछे चली गई। जो ब्रिटिश सिस्टम आया तो ब्रिटिश सिस्टम ने और तरह की एजुकेशन देना शुरू किया। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है और साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन पॉलिसी जो 5th एडिशन उसका लॉन्च हुआ है 2022 में, तो उसमें हमारी जो ट्रेडिशनल नॉलेज थी, ट्रेडिशनल साइंटिफिक नॉलेज थी, उस पर बहुत ज्यादा एम्फेसिस है। इनोवेशन पर बहुत ज्यादा एम्फेसिस है। इनोवेशन या नवाचार कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो एक बहुत ही हाईली क्वालिफाइड आदमी कर सकता है। ये कोई भी एक आम आदमी, आपने देखा होगा कि जितने भी ऑटोमोबाइल रिपेयर करने वाले हैं या मोबाइल रिपेयर करने वाले हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स रिपेयर करने वाले हैं, वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते। और जो NEP 2020 है उसका एक प्रयोजन ये भी है कि हम उस गैप को खत्म करें, हम इनोवेशन करें, स्किल्ड हो, और इंडस्ट्री के साथ जो टाई अप है जब तक वो मजबूत नहीं होगा तब तक हम उस गैप को कम नहीं कर पाएंगे। बहुत बड़ी चीज है जो हम नहीं कर पा रहे हैं या जो विदेशों से होती है और हम उसको एडॉप्ट करने के लिए हैं। जैसे यहाँ पर बहुत सारे इश्यूज हैं जो मैंने कहा कि जो ज्वलंत समस्या है यहाँ की पर्यावरण की है, तो हम सोलर एनर्जी बहुत ज्यादा है यहाँ पर। सोलर एनर्जी को ट्रैप भी एफिशिएंटली लगभग है। अब ये एनर्जी को स्टोर करने वाली बात है। टू स्टोर दिस एनर्जी एंड यूज दिस एनर्जी व्हेन एंड वेयर इट इज रिसोर्स हमारा जम्मू में डिस्कवर हुआ है। लेकिन उससे आगे भी हमें सोचना पड़ेगा कि बैटरी जो है, बैटरी की जो साइंस के स्टूडेंट है वो समझ पाएंगे। हमें जब हाइट में हम कोई भी व्हीकल जाती है तो हमें पावर चाहिए होती है। तो पावर डेंसिटी वाले जो डिवाइस है, एनर्जी स्टोरेज डिवाइस है, उस पर हमें काम करना होगा। लद्दाख विश्वविद्यालय ने एक MOU साइन किया है भारत सरकार का जो DST का एक इंस्टीट्यूट है, एडवांस रिसर्च इंस्टीट्यूट हैदराबाद के साथ। इस तरह की डिवाइस पर जब हाइट को निगोशिएट करता है दैट लूजेस स्पीड और वो क्रूशियल टाइम जो है वो लॉस होता है उसमें। तो इस तरह की डिवाइस जो सुपर कैपेसिटर्स हैं वो उस पे, जैसे हम CNG और पेट्रोल पे स्विच करते हैं, इसी तरह से हम सुपर कैपेसिटर और अपने फ्यूल पे स्विच कर सकते हैं। तो वो जब पावर देगा तो हम वी कैन नेगोशिएट द हाइट इजीली। तो उस MOU का पर्पस ये है कि जो टेक्नोलॉजी एक प्लेन एरिया में हमने टेस्ट की है, हैदराबाद में या और जगह पर जो टेस्ट की है, उसको हाई एल्टीट्यूड पे टेस्ट करना। यहाँ पर लॉस ऑफ एनर्जी बहुत ज्यादा होता है, लॉस ऑफ हीट बहुत ज्यादा होता है। तो आपने देखा होगा मोबाइल जो हम इस यहाँ के लोकल एनवायरनमेंट में जो इश्यूज हैं, जो फ्रूट्स हैं, जो वेजिटेबल्स हैं, उनकी शेल्फ लाइफ कैसे बढ़ाई जाए। बिहार जो इंस्टीट्यूट है यहाँ पर काम कर रहा है, तो वो ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि बहुत हाई फाई टेक्नोलॉजी है, वो यहाँ के एनवायरनमेंट के हिसाब से टेक्नोलॉजी है। अगर यहाँ के स्टूडेंट इस रुझान को, इस चीजों को समझकर अपनी जो आगे की एजुकेशन है उसको इस डायरेक्शन में लेके जाएं, तो एक बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योरशिप का यहाँ पर एक रोजगार परक जो शिक्षा जो यहाँ आज रुकने नहीं वाली है। यहाँ से कुछ 12 छात्र त्रिवेंद्रम में, ऐसा त्रिवेंद्रम में नेशनल कैंप में भी जाएंगे और उसके बाद वहां पे भी वो विनर बनेंगे और उनको भास्करा फेलोशिप मिलेगी। और उसके बाद जो सृजन इंटर्नशिप है उसमें भी वो इंटर्नशिप में किसी भारत के बहुत अच्छे नेशनल लैब में उनको जाने का मौका मिलेगा। प्रधानमंत्री बहुत बार बोलते हैं कि लद्दाख जैसा क्षेत्र आखिरी में आता है, ऐसा नहीं है। ये पहला गांव है, ये पहला राज्य है और उसका दायित्व भी हमारे कंधों पे आता है। अगर हम पहले हैं तो हमें वो लोगों को करके दिखाना है। VVM के लिए लद्दाख से ऐसा हो कि 100% हर लद्दाख लेह कारगिल का छात्र VVM के लिए रजिस्टर होगा, बहुत अच्छी प्रतिभावान कार्य करेगा, कुछ अच्छा देश के लिए करेगा।
और हम सारे लोग गर्वान्वित होंगे कि नहीं, यस, हमारे भी होनहार छात्र कुछ कर सकते हैं। एक आखिरी कहानी बता के मैं रुकूंगा। लोगों को लगता है कि नहीं, भारतीय छात्र कुछ नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। बताया गया कि जो वीडियो दिखाया गया था कि हमने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। पिछले IISF में आज तक 16 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं और मेरा सौभाग्य रहा कि उसमें से 9 के साथ मैं कोऑर्डिनेटर बन के काम कर चुका हूं। ये सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड आपके जैसे छात्रों ने बनाए हैं। पिछले भोपाल में मैंने सर से बात कर रहा था, सर को बता रहा था, जो साइंस इंडिया मैगजीन है उसमें IISF की असेंबली करके हांगकांग चाइना का रिकॉर्ड तोड़ दिया। भारत के छात्र जो कक्षा 6वीं 7वीं 8वीं के थे, आपके जैसे थे। पिछले साल हमने गोवा में IISF किया, उसमें 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। उसमें से एक की कहानी मैं बताऊंगा इसरो के साथ। आज का न्यूज़पेपर आप घर जाके पढ़ेंगे, मुझे पता है आप सुबह से यहां हो, आपने देखा नहीं है। इसरो ने आज एक GSLV Mark 3 को लॉन्च किया है। 36 सैटेलाइट्स उसमें थे। तो उस GSLV की प्रतिकृति, उसी को नाम एडवांस स्टेज में HRLE होगा। What students of Goa did, that they shown that yes, we students of 9 or 11 class are able to assemble rocket with 30 different separate parts and make a working rocket model. और फिर ये बात आ गई कि दिवाली 2 बार गोवा में हुई। नवंबर में जब आई तब आई, लेकिन ये 500 रॉकेट जो बच्चों ने बनाए, दिसंबर में 500 के 500 रॉकेट गिनीज वर्ल्ड। उन्होंने रेडीमेड रॉकेट लाए और उन रॉकेट को लॉन्च करके दिखाया कि ये रॉकेट एक साथ लॉन्च हो सकते हैं। नहीं, हमारे बच्चों ने रॉकेट खुद बनाए और वर्किंग मॉडल बनाए और लॉन्च करके दिखाए। गोवा के बच्चे जो चीज कर सकते हैं, लद्दाख के बच्चे भी वो चीज कर सकते हैं, जिससे आपके शिक्षक, आपकी संस्था, आपके पेरेंट आपके ऊपर गौरव महसूस करोगे। फिर से एक बार, ये फर्स्ट एवर स्टेट लेवल कैंप हैपनिंग इन दिस ब्यूटीफुल सिटी ऑफ लेक। All of you, local team Viva, congratulations to all of you and all the very best for the results. Thank you very much. Now request to Ringjing Namgyal ji to please give Khatak to Shri Sonam Wangchuk ji, DEPO Leh. Now request Stanjin ma'am to please give Khatak to Dr. Stanjin Dawa, Principal, Lamdal School. Request to Mohammad Hussain ji from Kargil, please give. So I will request to the committee, please provide magazine to all our guests and dignitaries. Result and other formalities we will do, but we know that all students also who came here are winners. But this is a journey which we are enjoying. So here it will not finish. If BVM has 3 steps: school level, state level, and then national level. Now one more additional steps which will also explained by our sir. So at each stage of BVM, students are learning. Obviously, all the formalities there, but at each stage of BVM, students learning about, focused on the role of Indian scientists. Each year, they are in syllabus have 2 scientists, Indian contribution to science. They are getting known about some unknown facts about Indian scientists. So now, I would request to Stanley ma'am, please give report. सबका पहले मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ आज के इस प्रोग्राम में। तो मैं यहाँ पे आज के संक्षिप्त विवरण के लिए मैं यहाँ मंच पे आई हूँ। विद्यार्थी विज्ञान मंथन 6वीं से 9वीं मान्यता के स्कूल के छात्रों के बीच विज्ञान को शिक्षित और लोकप्रिय बनाने के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है, जिसमें स्कूल स्तर पर लद्दाख के सरकारी एवं गैर सरकारी स्कूल से 3000 से भी ज्यादा विद्यार्थियों ने भाग लिया, जिसमें लद्दाख के हर क्षेत्र जैसे लेह, नुब्रा, दुर्गुक, नुमा, खालसे, कारगिल, द्रास, लोंगोर,
शारकोट बारू के 71 सरकारी और अशासकीय स्कूल के छात्र छात्राओं ने भाग लिया और आज के राज्य स्तर की परीक्षा में 39 जूनियर यहाँ पे उपस्थित हैं और आगे के लिए इसके बाद जिनका भी इसमें चयन होता है वो आगे नेशनल लेवल के लिए आगे जाएंगे। लेकिन 2023 में जो इसी तरह से एक और स्कूल लेवल और राज्य स्तर पर जो भी परीक्षा होंगे वो 21 मई से फिर से शुरू हो जाएगा। तो मैं चाहती हूँ कि आगे के इस तरह से आगे आने वाले विद्यार्थियों को आप प्रोत्साहित करें। हमारा यूनिवर्सिटी का रजिस्टर्ड एंड डॉक्टर प्रशांत जी का उन्होंने का दवा का सुनाम जुगले एना जो आपका ठीक है जो तक करने के कलंजस and my dear students in the team of led by Dr. प्रशांत जी। सबसे पहले तो मैं विवाह को सराहना करना चाहूँगा क्योंकि एक साल से अब लद्दाख में ही हूँ, क्योंकि आपका बहुत सारे जो कोऑर्डिनेट करते हैं मेरे में अरविंद जी हो गया, बहुत सारे लोग मेरे पास बार आते रहते हैं कि हम ऐसे करने जा रहे हैं। और रिसेंटली बहुत सारे हमारे बच्चे और टीचर्स भोपाल भी होके आए हैं और इसलिए बच्चों को एक्सपोजर बहुत एक तो इस कैंप के जरिए हो गया या जिस तरह से भोपाल में एक हफ्ते का साइंस फेस्टिवल यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया, क्योंकि हमें ये करने का मौका मिला था। among the 75 different places, level the one of the 75. So I feel it is a great opportunity for our students. वहाँ पे हमने यूनिवर्सिटी हो गया, कॉलेज हो गया और जितने भी हाई सेकेंडरीज और हाई स्कूल्स थे उनके सारे बच्चों को हमने इनकॉर्पोरेट करके एक हफ्ते का पूरा साइंस फेस्टिवल, साइंस का टेम्परमेंट कैसे क्रिएट किए जा सकते हैं और हमारा जितने भी इंडियन साइंटिस्ट हैं उनके बारे में प्राइज करने का कोशिश किया। और वहां से शुरू हो गया कि हमारे बच्चों को प्रोजेक्ट इस साल हम बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट देखने को मिला कि मॉडल बना के बच्चे आ रहे थे। पहले क्या होते थे, एग्जीबिशन जब भी साइंस एग्जीबिशन होते थे तो अपना लेबोरेटरी में से कुछ ना कुछ लेके आ जाते थे, कुछ मॉडल जो सिलेबस के अंदर जो होते थे। लेकिन जिस पिछले एक साल से हमारे बच्चे उस तरह से बच्चों ने बहुत सारे हमें एग्जीबिशन पे देखने को मिला और उसमें से सबसे ज्यादा सोलर पे फोकस किया हुआ है हमारे बच्चों ने, या वाटर के थ्रू हो वाटर को सोलर के थ्रू गर्म करके या पाइप के थ्रू या पैसिव सोलर हो, उस पे बहुत सारे एक्सप्लोर किया हमारे बच्चों ने और अच्छा खासा टेम्परमेंट उनके अंदर क्रिएट हुआ है। और साथ में हमने बच्चों को या जितने भी स्कूल्स के टीचर्स लेक्चरर्स है, प्रिंसिपल्स है, सब इसीलिए इस साल पिछले साल भी थोड़ा बहुत हमने कोशिश किया था, इस साल तो थोड़ा इंटेंसिवली हम करेंगे हर एक स्कूल में कि बच्चे 11 में आने से पहले कम से कम साइंस के बारे में सारे बच्चों को कुछ न कुछ बताया जाएगा। और इट विल बी इनिशिएटिव ये वेबा के द्वारा या विज्ञान प्रसार या एनसीईआरटी के द्वारा जितने भी इनिशिएटिव ले रहे हैं उसको हमारे स्कूलों में और हायर सेकेंडरी में यही शिकायत देते थे कि बच्चे कम इसीलिए आते हैं क्योंकि 10 और 9-10 में साइंस में इतना इंटरेस्ट बच्चे कम रखते हैं। इसीलिए हमने इस साल अभी नेक्स्ट मंथ अप्रैल में हम टीचर का भी रिक्रूटमेंट करने जा रहे हैं, उसमें ज्यादातर हमने मैथ्स और साइंस का टीचर रखा है। कोई 106 है, देखते हैं कितने लोग बढ़ने स्टडी करके कैसे इस टेम्परमेंट को छोटे बच्चों के द्वारा कैसे किए जा सकते हैं, उस तरफ से अपना टीचर के द्वारा एक रिसर्च भी कर रखा है। एक ये भी है कि बच्चों 7, 8, 9, 10 तक पहुंचते पहुंचते बच्चे का इंटरेस्ट थोड़ा कम रहते हैं। मुझे अभी लखनऊ स्कूल के प्रिंसिपल से थोड़ा बात कर रहा था कि बच्चे कितने हैं, तो 45 से अबव है, अच्छा लगा क्योंकि हमारे बहुत सारे स्कूलों में कोई किसी में 10 है, कोई 12 है, किसी में 4 है, किसी में 5 है, लेकिन लेक्चरर्स हर एक स्कूल में लेक्चरर पूरी की पूरा है।
इसलिए टीचिंग का हो या इक्विपमेंट का हो, हाई सेकेंडरी हाई स्कूल में अभी कोई कंप्लेंट नहीं किया। सो आपका जो इंतजार है सभी बच्चों का वो खत्म हुआ और हम जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन है वो पार्टिसिपेशन से क्लास के स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले ये सब जब हम प्रोग्राम करते हैं विज्ञान भारती के साथ मिलकर तो बहुत कुछ पढ़ने का, सीखने का हमें मौका मिलता है। तो उसमें मैं अभी आपको जो बात बताऊंगा उस बात को जब आप पूरी बात सुनेंगे 2 मिनट में, आपके मन में बार बार सवाल आएगा क्यों। वो इसलिए रुचिराम साहनी पंजाब से थे वैज्ञानिक, पहले वैज्ञानिक थे भारत के जो एटॉमिक के फील्ड में भारत से पढ़ने के लिए गए और रदरफोर्ड के साथ जाकर के रिसर्च का काम करना शुरू करें। फिर मन में आया क्योंकि उस समय तो हम आजाद नहीं थे तो वापिस आ गए। तो पहला सवाल तो यही आ जाता है, जब एक आदमी रदरफोर्ड के साथ काम कर रहा है, रदरफोर्ड इतना वेल नेम है रिसर्च में, कल को रदरफोर्ड की उनको हल्का सा रिकमेंडेशन देंगे तो उनको कोई जॉब की तो समस्या नहीं आने वाली ना। फिर वो वापस उस देश में आ रहे हैं रिसर्च करने के लिए जहां वो फंड मांगने जाएंगे, पता नहीं मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। और उस समय कोई ऐसा तो है नहीं, इतनी लिबर्टी है हमारे पास या बहुत रिसोर्सेज हैं भारत के पास। वो वापिस आ गए। वापिस आकर के सबसे पहला काम क्या किया उसने, ये देखा, जब बाहर से आए थे तो देख के आए थे कि डेवलप्ड कंट्री है तो सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो उस समय उसकी बहुत इस्तेमाल थी, हम उस समय इंपोर्ट करते थे। तो उन्होंने उसकी फैक्ट्री लगाने का डिसीजन लिया। फैक्ट्री लगाने, और फैक्ट्री किसकी मदद से लगाई, प्रफुल्ल चंद्र रे की मदद से, जो बंगाल में कोलकाता में जिनको फादर ऑफ हिंदू केमिस्ट्री जिनको बोला जाता है, जिनकी बुक भी आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि उस समय बंगाल जो था वो लीडिंग था साइंस के फील्ड में। तो पीसी रे जी की मदद से फैक्ट्री लगाई सल्फ्यूरिक एसिड की लाहौर में। फिर देखा कि कॉलेज में जो बच्चे जैसे आज अपने एक्सपेरिमेंट किए लैब में जाकर के, तो वो मटेरियल जो है वो सब कहां से आ रहा था, बाहर से आ रहा था बन बन के। उसकी एक वर्कशॉप स्थापित की लाहौर में और वहां पर इक्विपमेंट बनाने स्टार्ट किए कि हम अपने खुद के इक्विपमेंट बनाएंगे। उनके बारे में जब आप पढ़ेंगे तो ये जिक्र भी आता है कि उस समय उन इक्विपमेंट की क्वालिटी जिसको रुचिराम साहनी जी लाहौर में बना रहे थे, वो जो हम बाहर से ब्रिटेन से या इंग्लैंड से मंगा रहे थे, क्योंकि हम तो क्या करके यहाँ उसको इस्तेमाल कर रहे थे, उनकी क्वालिटी किसी भी मायने में कम नहीं थी। उस समय जिन बच्चों को वो उन इक्विपमेंट के हिसाब से ट्रेन करते थे, या आप जैसे बच्चे जो थे वो जो है ना, जिनको उनका नोबेल प्राइज के लिए क्रेडिट नहीं मिला और जो आज वाईफाई आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो उन्हीं की देन है। तो आप कनेक्शन जोड़ रहे हैं। अब इसमें एक और कनेक्शन है, शांति स्वरूप भटनागर स्टूडेंट के रूप में संपर्क में आए रुचिराम साहनी जी के और अपने मन की बात बताई कि मुझे बाहर पढ़ने को जाना है, क्योंकि उस समय यहाँ तो फैसिलिटी नहीं थी, थोड़े समय तक तो रिसर्च पेपर भी लिखने की फैसिलिटी नहीं थी भारतीय वैज्ञानिकों को। तो जो शांति स्वरूप भटनागर जी ने बताया कि मुझे बाहर जाना है पढ़ने के लिए, तो रुचिराम साहनी जी ने दयाल सिंह फाउंडेशन, दयाल सिंह फाउंडेशन का नाम आपने सुना भी होगा, पंजाब नेशनल बैंक जो है उससे भी ये नाम जाके जुड़ता है। दयाल सिंह फाउंडेशन से पैसा दिलाया, शांति स्वरूप भटनागर विदेश चले गए पढ़ाई करने के लिए। फिर मन में आना क्यों वापिस आ गए। एक आदमी जो यहाँ से उस समय जब यहाँ बिल्कुल अत्याचार हो रहा है वो बाहर चला ही गया है पढ़ने के लिए, तो उनके मन में तो आना चाहिए था कि मैं तो यार बाहर अच्छा आ गया छोड़ छाड़ के, यहाँ सब सेटल है और बड़ी आसानी से उनको जॉब भी मिल जाती है। पर उन्होंने क्या किया, वो फिर वापिस आ गए। भारत में आकर के उन्होंने बाद में प्रयास किए और शांति स्वरूप भटनागर जी के नाम पर ही भारत में विज्ञान का सबसे बड़ा प्राइज आज दिया जाता है वैज्ञानिकों को। उन्होंने आकर के CSIR की शुरुआत की 9 लाख रुपए के बजट से, और आज की तारीख में CSIR की पूरी भारत में 38 लैब हैं, 4400 करोड़ का बजट है। तो मुश्किल कब थी, उस समय थी कि आज है। जिस समय 9 लाख से हमने शुरुआत की, मुश्किल तो उस समय होनी चाहिए थी काम करने के लिए, लेकिन क्या था उसको आज हम सिर्फ उसका अंदाजा लगा सकते हैं, या हम उसको एक वर्ड में कह सकते हैं कि देश के प्रति भावना। लेकिन वो कितना त्याग कर दिया उन्होंने। तो आप जिस भी फील्ड में हैं, अगर कोई देश है, अच्छा खिलाड़ी चाहिए, अच्छा वैज्ञानिक चाहिए, अच्छा इंजीनियर चाहिए, अच्छा राजनेता भी चाहिए, मान के चलिए, ठीक है। तो आप जिस फील्ड में हैं उस फील्ड में आप
किसको अपना आइडियल मान रहे हैं, किसको देख करके आप चल रहे हैं, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। क्योंकि जो IICT हैदराबाद में नेशनल लेवल कैंप हुआ, उस समय भारत ने सैटेलाइट से सैटेलाइट गिराने वाला 27 मार्च 2019 को मिशन शक्ति लॉन्च किया था। उसके प्रोजेक्ट हेड आए हुए थे हमारे नेशनल कैंप में। तो जब वो अपना प्रेजेंटेशन दे रहे थे बच्चों को, तो 6 क्लास की एक लड़की जो केरला से थी, उसके पास उन जो सर थे प्रोजेक्ट हेड उसके, उन सब क्वेश्चंस के जवाब उस लड़की के पास थे। और जबकि 6 क्लास में तो सैटेलाइट आता ही नहीं है पढ़ने के लिए, 9th में या फिर 11th में जाकर के उसका इंट्रोडक्शन होता है। तो फिर वो इतने खुश हुए, और ये मान के चलिए 400 पेरेंट्स बैठे हैं, 400 स्टूडेंट्स बैठे हैं, इतने लोग हैं, IICT के अंदर वैज्ञानिक बैठे, वो देख के हैरान है कि बच्चा इतनी नॉलेज लाया कहां से। उनको ऊपर बुलाया कि बताइए, अभी भी आपको वीडियो देख सकते हैं यूट्यूब पे जाके। तो पूछा कहां से, तो उसने बताया यूट्यूब से, अलग अलग मेरा मन है स्पेस साइंटिस्ट बनने का। तो अगर उनका मन था 6 क्लास में उस बच्ची का, तो कितना उसने रिसोर्सेज जो आज हमारे पास है उसको इकट्ठा करके नॉलेज इकट्ठा किया हुआ था कि वो आदमी जो स्पेस वो सैटेलाइट मिशन लॉन्च करके आया हुआ है, उसके हर एक सवाल का जवाब उसके पास था। तो लिमिट तो आपकी नहीं है, क्लास है जरूर 6, 7, 8 उसमें करने के लिए। अभी हम सर पार्टिसिपेशन जो सबके हमारे मोमेंटोज है क्लास वाइज स्टार्ट कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कॉल क्लास 6 स्टूडेंट्स, यू कैन कम फ्रॉम देयर। क्लास 6 स्टूडेंट्स जल्दी, क्लास 6 स्टूडेंट्स। कुछ वॉलंटियर्स भी ऊपर आ जाएंगे तो हम इजीली सबको सर्टिफिकेट मोमेंटोज दे पाएंगे, प्लीज। क्लास 7 रेडी हो जाओ। क्लास 7 बीच में आइए। सबको पकड़ा दो। सब बच्चे सामने। क्लास 7 स्टूडेंट्स प्लीज, क्लास 7 स्टूडेंट्स, क्लास 7 स्टूडेंट्स। इसके बाद क्लास 8 वाले भी रेडी रहेंगे। Class 8 students, class 8, hurry up. Interesting for me and a new experience for me, and I love the labs of this college, like the chemistry lab, like the biology or zoology, and I love the physics lab of that. And the exam was a little hard, but I love this exam, and I hope that I will also attend this exam in the near future. And thank you. A very good afternoon to one and all present here. My name is Tingasnanta Solma, and today I'm going to share some of my experiences during this BBM examination. So, first of all, I would like to thank everyone for giving me this opportunity to give this examination. So, firstly, we gave the experimental skill test, where there were physics, chemistry, biology, and mathematics practical experiments. So after that we gave the written examination, which was for 60 minutes, and lastly we gave the arithmetic test, which was for 20 minutes. So overall my experience was really good, but the math part was kind of difficult for me, but I really enjoyed giving the state level camping. So thank you so much everyone. Hello to all, my name is Panzan Desal and I'm currently studying in class 7th in Ladakh Public School. I'm here in front of you all to share
share my experience of attending the state level camp of BBM. As you all know that this is the first time we are in conducting a camp in Ladakh, and we're the first batch who got this wonderful opportunity. So I would like to thank the team of BBM for conducting such camp in Ladakh. This experience was something really great and new to me, as it was something beyond school curriculum. And I learned a lot from this camp, and the teachers were also very good to us. That's all. Thank you. Everyone, my name is Kunga Galmo. I study in London Model Senior Secondary School, Ladakh. Well, this day was one of a kind. I got to learn a lot. I came here with a learning motive, with a learning attitude. And yes, I got to experience a lot whenever I am in this BBM exam. Vidyarthi Vigyan Manthan and Vigyan Bharti are one of the best exams I've ever seen, because here we get to do hands-on experiments, which usually we are not able to do in any other exams particularly. As I got the excellent opportunity to attend the India International Science Festival in Bhopal. Well, there I saw what's the difference between Ladakh and at Bhopal. I got to learn a lot. The the teachers were so approaching, and we got a lot of new experiences too. Well, as of today, the exam was hard, and that's what challenged me. And if there's something which does not challenge you, it does not make you better. Well, I got to know where I actually stand today. But I know that we can do better. If we are willing to learn more, to have more, and to do more, we can be a leader. And this exam also teaches how to be a leader, how to overcome your fears. And at last, I would just like to say that success is not final. Failure is not fatal. It is only the courage that counts to be continued. Thank you. I will just start with a quotation. If you think you can do, yes, you can do. If you think you can't, you can't. It's all in this state of mind, right? So nothing is impossible. Even the word impossible says I'm possible. So first, I will just announce the name of the winners, and the result is with me. But are they ready? Yes. Are you ready? Are you ready? Shall I announce the names of the winners? I think everyone is anxiously waiting for these results. So without wasting too much time, I'll just announce the name of the winners. And to start with, I will start with class 6th, right? Shall I announce the name of the winners of the state game for 2022-23? The third, I will start with class 6th, and the winners of third position winner name is Stanzin Jigmet, London Model Senior Secondary School. He will also get rupees 5,000 cash prize. Third position, 2,000. Congratulations, Manoli. Oh no! Wait. Second position winner is Tanzin Desal, Ladakh Public School. He will also get a prize of rupees 3,000. Momentary certificate. Congratulations, Tanzin Desal. And the winner of today's 6th class, first position winner name is Tanzin Rikchok, London Model Senior School. Congratulations. You will also get this for rupees 5,000 certificate and memento. Congratulations, Manole. From class 7, the state winners are the third position. The name of the third position winner is
Yufeza Zahir, Islamia Public School, 3rd Division. He will get rupees 2,000 memento and certificate. Congratulations, Yufeza Zahir, Islamia Public School. You will also get rupees 2,000 certificate and memento. Now the second position winner name is Tillis Angmo GN National Public School. Second position winner. Congratulations, Tillis Angmole GN National Public School. For second position winner. The first position winner is Jigmet Palkit, Lamnur Model Senior Secondary School. You will also get rupees 5,000 certificate and memento. Congratulations, Jigmet Palkit. Congratulations to you. Now from class 8, congratulations. From class 8, third position winner is Padma Nangyal Ladakh Public School. Congratulations. If any parents or teachers can come here, you can accompany them right here. Padma Nangyal, congratulations. Ladakh Public School, third position winner. Now second position winner is Kanis Fatima Government Model High School, Langkot, Kargil. Congratulations, Kanis Fatima. You will also get cash prize of rupees 3,000, certificate and memento. Once again, congratulations. Now the first position winner from class 8 is Zahra Batul, Government Model High School, Langkot, Kargil. You want to accompany this? Congratulations, Zahra Batule from Government Model High School, Langkot, Kargil, for your first position. Thank you so much. Now I will invite. And my special thanks to Madam Dr. Samina Iqbal, Principal EGM College, because without her support it would not have been possible for us to organize such a wonderful event for all of you. And I express my gratitude towards Honorable Vice Chancellor Professor S.K. Mehta, University of Ladakh in absentia, and Professor Ashok Sharma ji, Registrar, University of Ladakh, whose support and motivation encouraged us to reach up to this level. Thank you so much, sir. And special thanks to Shri Sonal Mangtukti, DEPO Le, Dr. Stanzin Dava, Principal, Lambton School Le, and what shall I say for you, sir, Professor Prashant, who is backbone of today's event and the mastermind behind the event, Dr. Ajay Sharma. And I express my thanks to Shri Sering Mandu, a member Vivian, retired zonal, and also my colleagues Dr. Kyundup Nangyal and Dr. Amjad from University of Ladakh. And my special thanks to Shri Ravi Panditaji, GIG,
ITBP Day, and Madam Lisa, who spared their valuable time to grace this occasion. We are really thankful to you, sir. And from the core of my heart, I am thankful to the volunteers of the Department of Mathematics and Department of Zoology, University of Ladakh, and evaluators, and also the technical staff who made this event possible. And without whose help it was also very difficult. And all the students, my lovely students, whose faces I am looking at since the morning. And believe me, I saw as if my daughters had come to appear in the examination. And those who were feeling nervous, I tried to hug them, to motivate them. And I'm really thankful to all of you who made it possible. And you worked very hard, and I congratulate all the participants, not only the winners, but all the participants, and hope to see you in the next events. Thank you so much. Thank you, everyone. State BBM coordinators. Without them, this program would have not been possible. So, a big round of applause for Bingzing sir and Ahmed sir, who were the face for BBM in this particular duty. Thank you very much for local Viva team. Thank you. अभी सब लोग नेशनल एंथम के लिए खड़े हैं। मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मा